بلٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ مانسون ایک بار پھر 3 جانیں نکل گیا۔ شہر میں 3 چھتیں گر گئیں۔ گڑھی شاہ ریلوے کالونی میں گھر کی چھت گر گئی۔ ایک ہی خاندان کی 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق، 60 سالہ مبین، 46 سالہ نورین اور 10 سالہ فاطمہ شامل۔ رشتہ داروں کی آؤ بقا۔ مونسون ایک بار پھر 3 جانیں نکل گیا۔ لاہور کے علاقے گڑھی شاہو ریلوے واشنگ لائن پر گھر کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر ماں، باپ اور ایک بیٹی جاں بحق جبکہ دوسری بیٹی زخمی ہو گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر عامر بٹ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ضلع انتظامیہ اسکولوں کی عمارتیں چیک کرتی رہی مگر گھروں کو بھول گئے، اب گھروں کو بھی دیکھیں گے۔ جو ہمارے اسکول، کالجز اور اس طرح کی بلڈنگس تھی ان کا تو سروے کر کے ان کو جو ڈینجرس تھی انہیں یا منہدم کیا جانا یا سیلنگ یا ریکٹیفیکیشن اس طرف چلے گئے تھے، کیونکہ یہ کچی آبادی ہے، ریلویز ایریا تھا، ریلویز اسے دیکھ رہا تھا، بٹ ہم انشاءاللہ اس پہ بھی لاہ عمل بناتے ہیں کہ اس طرح کی جو کچی آبادیاں ہیں جو جس طرح بالکل اندرون میں ہے، یہ گڑھی شاہو میں ہے اور یہ اس طرح ہمارے پاس اور بھی کچھ ہیں، اسپیشلی یہ ریلویز ایریا یا واپٹاز ایریاز میں کچھ اس طرح کی آبادی ہیں، ان کا بھی کچھ سروے کر کے ان کے اوپر بھی کوئی لاہ عمل بنایا جائے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 60 سالہ مبین، 46 سالہ نورین، 10 سالہ فاطمہ اور زخمیوں میں 16 سالہ ایمل شامل ہے۔ نورین کے بھائی رضوان کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ حادثہ پیش آئے گا۔ بنوائی میرا اور مشیرہ اور بانجی فوت ہو گئی ہیں، ایک کی ٹانگ فریکچر ہو گئی۔ بانجی میری جو فوت ہو گئی ہے وہ 7ویں کلاس میں 7 میں پڑھتی تھی اور جو اللہ نے جسے بچا لیا وہ 9th کلاس میں پڑھتی ہے۔ محلے داروں نے بتایا کہ علاقے میں تمام افراد مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں۔ جاں بحق ہونے والا مبین بھی کئی سال سے بے روزگار تھا۔ کچھ شہری حکومت سے بھی شکوہ کرتے دکھائی دیے۔ گورنمنٹ کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا کہ دام اچھے ہی ہونے چاہیے، پورے یہ تمام ایریا، یہ پوری سوسائٹی یہ کچی آبادی کہلاتی ہے، تو یہ تمام اس کے لیے ان کو سوچنا چاہیے، ان کی بہتری کی طرف آنا چاہیے۔ ہم سو رہے تھے، ان کے ہمساؤں کو پتہ لگا 5 بجے ان کے سامنے ایک لڑکا رہتا ہے، وہ ڈیوٹی پہ سے آیا تو اسے پتہ لگا وہ جو لڑکی بچی ہوئی تھی وہ ہیلپ کے لیے پکار رہی تھی، تو بالکل ساتھ والے جو ہیں انہوں نے چھت کے اوپر سے جا کے لڑکے نے اندر سے کنڈی کھولی تو پھر سارے محلے دار جو ہیں نا اس کی ہیلپ کے لیے پہنچے۔ یہ علاقہ ریلوے واشنگ لائن کے تجاوزاتی کوارٹرز میں شامل تھا جو محکمے کی جانب سے نہیں تعمیر ہوا، مگر یہاں غریب عوام کو پکی چھتیں بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی جو حادثات کی بڑی وجہ ہے۔ کیمرامین احمد علی کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ لیدر اسٹاپ اور فیروزپور روڈ پر ملا چوک میں چھت گر گئی۔ بیدیا روڈ لیدر اسٹاپ پر گھر کی چھت گر گئی، 3 افراد زخمی۔ زخمیوں میں 85 سالہ اسلم، 45 سالہ ممتاز جبکہ 20 سالہ احسن شامل ہے۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت رسپانس کر کے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گاٹر سے بنی ہوئی تھی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فیروزپور روڈ پر ملا چوک کے قریب خستہ حال کمرے کی چھت گر گئی جس کے نتیجے میں دب کر 4 افراد زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں میں 40 سالہ اعجاز، 40 سالہ عمران جبکہ 36 سالہ عدنان شامل ہیں۔ 12 سالہ حسن بھی ملبے تلے دب جانے سے زخمی ہوا۔ شہر میں بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی۔ ٹاؤن شپ کچا جیل روڈ، گرین ٹاؤن، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں پانی جمع، عامر ٹاؤن تالاب بن گیا۔ رہائشی گھروں میں محسوس، گل کالونی، شوکت ٹاؤن کی گلیاں بھی بھر گئیں، کئی فٹ پانی جمع۔ المیرا چوک، سبززار، مین بولیوارڈ، پی آئی اے روڈ پر پانی ہی پانی۔ گلبرگ 3 سر سید روڈ پر اسپتال کے اطراف 2 فٹ تک پانی جمع۔ ٹریفک روانی متاثر، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہر میں بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ٹاؤن شپ کچا جیل روڈ، گرین ٹاؤن، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں پانی جمع ہو گیا۔ فیروزپور روڈ، گلبرگ، نصیر آباد اور ملحقہ علاقوں میں تیز بارش کے باعث نشیبی مقامات پر پانی جمع ہو گیا۔ پارکوں میں جمع بارش کا پانی بچوں کی تفریح کا باعث بن گیا۔ بچے بارش اور پانی سے خوب لطف اندوز ہوتے رہے جبکہ شہری بھی خوشگوار موسم سے محظوظ ہوتے نظر آئے۔ ہربنس پورہ، عامر ٹاؤن میں بارشی پانی جمع ہونے سے علاقہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ رہائشی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ واسا اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آپ کو یقینی نہ بنایا جا سکا۔ بارشی پانی جمع ہونے سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند ہوتی رہیں۔ رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے جلد نکاسی آپ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ گلبرگ 3 سر سید روڈ پر نجی ہسپتال کے اطراف بارشی پانی جمع رہا۔ بعض مقامات پر 2 فٹ تک پانی جمع ہونے سے آمد و رفت بری طرح متاثر ہو گئی ہے۔ جمع پانی کے باعث علاج کے لیے آنے والے مریضوں، ان کے تیمارداروں اور ایمبولینسوں کو ہسپتال تک رسائی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں جبکہ ہسپتال کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی پانی جمع ہونے سے پیدل چلنے والے بھی
भी परेशान हैं। गुल कॉलोनी, शौकत टाउन की गलियां बारिश के बाद कई फीट पानी में डूब गईं। गाजी रोड से मुल्हिका सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और नकासी आब के मौसर निजाम की अदम दस्तयाबी के बायस बारिश का पानी घंटों जमा रहा, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई और गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों, ताजिरों, खरीदारों और राहगीरों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश के बाद PIA रोड से मुंसलिक चौधरी चौक और मुतअद्दिद रिहायशी गलियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों और पैदल चलने वालों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर रही। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवी का शिकार रही, जबकि शहरी घरों और दुकानों तक पहुंचने में मुश्किलात से दो चार नजर आए। अहले इलाका का कहना है कि हर बार बारिश के बाद यही सूरत हाल पैदा हो जाती है, इसलिए नकासी आब के मुस्तकिल और मौसर इंतजामात किए जाएं ताकि उन्हें बार बार इस परेशानी का सामना न करना पड़े। शहर में मानसून बारिश का 5वां रोज लक्ष्मी चौक, जेल रोड, गुलशन रावी में तेज बारिश, अपर माल, इकबाल टाउन, सबलाबाद, गुलबर्ग, डिफेंस में बादल बरसे। सगिया, जौहर टाउन, फरुखाबाद, नशर टाउन और मनावा भी भीग गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम और अतराफ में भी सड़कें डूब गईं। सबसे ज़्यादा बारिश फरुखाबाद में 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सगिया 139, पानी वाला तालाब 126 और लक्ष्मी चौक में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में मानसून का तगड़ा स्पेल, 5वें रोज भी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। लक्ष्मी चौक, जेल रोड और गुलशन रावी में तेज बारिश हुई। अपर मॉल, इकबाल टाउन, समनाबाद, गुलबर्ग, डिफेंस में बादल बरसे। सगिया, जौहर टाउन, फरुखाबाद, निश्तर टाउन और मनावा भी भीग गया। नेशनल हॉकी स्टेडियम और अतराफ में भी सड़कें डूब गईं। सबसे ज्यादा 61.8 मिलीमीटर बारिश सगिया में रिकॉर्ड की गई। जेल रोड 30.8 मिलीमीटर, हेड ऑफिस गुलबर्ग में 17 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक 54.2 मिलीमीटर, अपर मॉल 53.2 मिलीमीटर, मुगलपुरा में 24.8 मिलीमीटर, ताजपुरा 26.4 मिलीमीटर, निश्तर टाउन 20.8 मिलीमीटर, चौक नाखुदा में 52.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 44.4 मिलीमीटर, फरुखाबाद 53.2 मिलीमीटर, गुलशन रावी में 35.6 मिलीमीटर, इकबाल टाउन 13.4 मिलीमीटर, समनाबाद 39 मिलीमीटर, जौहर टाउन में 25.4 मिलीमीटर बारिश हुई। डिफेंस रोड 7.6 मिलीमीटर, शादीपुरा 27.6 मिलीमीटर, सगिया में 61.8 मिलीमीटर, काहना 10.8 मिलीमीटर और मनावा में 25.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। नए निर्खों के बाद पेट्रोल और डीजल मजीद महंगे हो गए हैं, जिस पर शहरी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हालिया इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 66 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 80 पैसे इजाफा किया गया है। नए निर्खों के मुताबिक पेट्रोल 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल 385 रुपए 79 पैसे फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर शहरियों ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत के फैसले को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल से अवाम गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं और घरेलू बजट बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे का सिलसिला ना रोका गया तो महंगाई मजीद बढ़ेगी और आम शहरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में महंगाई का गिराफ आज भी ऊंचा। फल, सब्जियां सरकारी रिखों से जायद कीमत पर फरोख्त। कीमतों में 40 से 120 रुपए तक इजाफा। दूसरी जानिब सुई गैस की किल्लत, LPG ब्लैक हो गई, कीमतें आसमान को छू गई। सरकारी रेट 241, मार्केट में 410 रुपए किलो फरोख्त। शहर में गिरा फरोशों का राज बरकरार, इंतजामिया बेबस। ओपन मार्केट में सब्जियां, फल, LPG और दीगर अशियाए जरूरिया शहरियों को सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। सब्जियों और फलों की कीमतों में 40 से 120 रुपए तक इजाफी दाम बटोरने का सिलसिला जारी है। LPG में 100 से 170 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 92 रुपए फी किलो है, मगर मार्केट में 120 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 300 रुपए के सरकारी निर्ख के मुकाबले में 420 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। फूल गोभी की सरकारी कीमत 110 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फी किलो दस्तयाब है। चौंसा आम 350 रुपए के बजाय 450 रुपए, आड़ू स्पेशल 280 रुपए के मुकाबले में 350 रुपए, जबकि सेब 220 रुपए के बजाय 350 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है।
केले की सरकारी कीमत 215 रुपए फी दर्जन है, मगर ओपन मार्केट में 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब एलपीजी भी महंगी होकर ब्लैक में फरोख्त होने लगी है। गुज़िश्ता दिनों एलपीजी 330 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही थी, ताहम अब कीमत बढ़कर 370 से 410 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है, जबकि सरकारी तौर पर इसकी कीमत 241 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि सरकारी निर्खों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। और यहाँ आपको बताएं कि शहर के ओपन मार्केट में गिरा फरोशी का सिलसिला अरूज पर पहुँच गया है। मार्केट में दूध की सरकारी कीमत 170 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर होने के बावजूद 240 रुपये फ़ी लीटर तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मटन की सरकारी कीमत 1600 रुपये फ़ी किलोग्राम है, मगर कसाबों की जानिब से 3200 से 35 रुपये फ़ी किलोग्राम तक वसूल किए जा रहे हैं। बीफ भी सरकारी निर्खों से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त हो रहा है। शहर में गंदम की कीमत के मुकाबले निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे की कीमत ज़्यादा वसूल कर रही हैं। शहर के ओपन मार्केट में गिरा फरोशी का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। मुताबिक अशया खुरनोश सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। मार्केट में दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर होने के बावजूद 240 रुपए फी लीटर तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह मटन की सरकारी कीमत 1600 रुपए फी किलोग्राम है, मगर किसाबों की जानिब से 3200 से 3500 रुपए फी किलोग्राम तक वसूल किए जा रहे हैं, जबकि बीफ भी सरकारी निर्खों से ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा है और मुख्तलिफ मार्केटों में इसकी कीमत 1200 से 1400 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच चुकी है। शहर लाहौर में गंदम की कीमत के मुकाबले निजी कंपनियां 5 किलोग्राम के आटे की कीमत ज्यादा वसूल कर रही है, जिस पर सार्फिन सेख्ता है। मुख्तलिफ ब्रांड्स का 5 किलोग्राम आटे का पैक बदस्तूर 930 से 1030 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जिसके बायस मुतवसत और कम आमदनी वाले तबके को मयारी आटा खरीदने में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब मुल्क की सराफा मार्केट में सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद खालिस 24 कैरात सोने की फी तोला कीमत 300 रुपए इजाफे से 4,30,000 रुपए हो गई है। सराफा मार्केट के मुताबिक 22 कैरात सोने की फी तोला कीमत बढ़कर 3,94,717 रुपए, जबकि 21 कैरात सोने की फी तोला कीमत 3,76,775 रुपए तक पहुंच गई है। कि नकद रकम की ज़रूरत टोकन के हसूल के लिए कतारों में इंतजार की ज़हमत खत्म हो गई। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को जदीद, महफूज और कैशलेस सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए ई ट्रांसपोर्ट ऐप और टी कैश कार्ड मुतारिफ करा दिया। नकद रकम की जरूरत टोकन के हुसूल के लिए कतारों में इंतजार की ज़हमत खत्म हो गई। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को जदीद, महफूज और कैशलेस सफरी सहूलत फराहम करने के लिए ई ट्रांसपोर्ट ऐप और टी कैश कार्ड मुतारिफ करा दिया है। जदीद इलेक्ट्रॉनिक किराया वसूली निज़ाम शहरियों को टी कैश कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए बगैर नकद रकम के तेज, महफूज और आसान सफर की सहूलत फराहम करता है। ई ट्रांसपोर्ट ऐप और टी कैश कार्ड के जरिए मुसाफिर मेट्रो बस और इलेक्ट्रिक बसों पर एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सफर कर सकते हैं, जिससे नकद रकम की जरूरत और टोकन के हुसूल के लिए कतारों में इंतजार करने की ज़हमत खत्म हो गई है। PITB चेयरमैन फैसल यूसुफ के मुताबिक ई ट्रांसपोर्ट ऐप और टी कैश कार्ड पंजाब में डिजिटल ट्रांसपोर्ट की फरोख्त की जानिब अहम कदम है, जिसका मकसद शहरियों को महफूज, आसान और जदीद सफरी सहूलत फराहम करना है। निज़ाम न सिर्फ शहरियों के रोजमर्रा सफर को आसान बनाएगा, बल्कि डिजिटल अदायगियों के फरोग, बेहतर सर्विस डिलीवरी और स्मार्ट गवर्नेंस के क़याम में भी अहम किरदार अदा करेगा। पुरानी और नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियों की स्क्रैपिंग का कानून नाफिज। रजिस्ट्रेशन मनसूख किया बगैर फिटनेस गाड़ियां स्क्रैप की जा सकेंगी। गाड़ी का मालिक अपनी मर्जी से भी गाड़ी स्क्रैपिंग के लिए जमा करवा सकेगा। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल्स तीसरी तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पंजाब में पुरानी, नाकाबिले इस्तेमाल और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों की स्क्रीनिंग के लिए नया कानूनी फ्रेमवर्क नाफिज कर दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत पहली मर्तबा एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स की तारीफ सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में शामिल की गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक रजिस्ट्रेशन मनसूख, फिटनेस सर्टिफिकेट से महरूम या शदीद नुकसान का शिकार गाड़ियों को हुकूमत की मंजूर शुदा स्क्रीनिंग फैसिलिटीज पर तलब किया जाएगा। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 2026 जारी कर दिया। कानून के मुताबिक वो गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो चुकी हो, फिटनेस सर्टिफिकेट ना हो या जो शदीद हादिसे, आग या कुदरती आफात के बाइस नाकाबिले इस्तेमाल हो जाएं, उन्हें स्क्रैप किया जा सकेगा। गाड़ी का मालिक अपनी मर्जी से भी अपनी गाड़ी मंजूर शुदा
स्क्रीनिंग फैसिलिटी में जमा करा सकेगा। कानून के मुताबिक स्क्रीनिंग सिर्फ हुकूमत की मंजूर शुदा या रजिस्टर्ड स्क्रीनिंग फैसिलिटीज पर की जाएगी, जहां काबिले इस्तेमाल पुर्जों को महफूज किया जाएगा, जबकि बाकी गाड़ी को माहौल दोस्त तरीके से रिसाइकिल किया जाएगा। सूबाई मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 2026 के मुताबिक फिजाई आलूदगी में कमी, नाकारा और आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों के खात्मे, महफूज ट्रांसपोर्ट के फरोग और इलेक्ट्रिक और माहौल दोस्त गाड़ियों के इस्तेमाल की हौसला अफजाई में मदद मिलेगी। प्राइवेट तालीमी इदारे किस कानून के तहत फ़ीस लेते हैं? फ़ीस वसूली के तयन से मुतालिक कवायद ज़वाबित ना होने का इंकशाफ, फ़ीस मुकर्रर करने का रेगुलेटरी सिस्टम सिरे से मौजूद नहीं। पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी में महकमे ने एतराफ़ कर लिया। कवायद ना मानने वालों को रजिस्ट्रेशन मनसूखी का मुतालबा। प्राइवेट तालीमी इदारे किस कानून के तहत फीस वसूल करते हैं? तालीमी इदारों की फीस वसूली के तयन से मुतालिक कवायद ज़वाबित ना होने का इंकशाफ हुआ है। प्राइवेट स्कूल्स की फीस मुकर्रर करने का रेगुलेटरी सिस्टम सिरे से मौजूद ही नहीं। पंजाब असम्बली स्टैंडिंग कमेटी बराए स्कूल एजुकेशन में महकमा ने एतराफ कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक महकमा फीस का तयन नहीं कर सकता। सालाना इजाफे के रूल्स मौजूद हैं। प्राइवेट स्कूल्स फीस में सालाना 4 से 5% इजाफा कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ फीस में इजाफा कंट्रोल करने का इख्तियार है। चेयरमैन कायमा कमेटी के मुताबिक गुज़िश्ता इजलास में इस हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ अपनाया गया था। कमेटी रुकन ने सवाल किया कि रजिस्ट्रेशन का इख्तियार है तो खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसे तो मुमकिन नहीं कि कोई कहीं भी कुर्सी टेबल लगाकर स्कूल खोल ले। रुकन कमेटी के मुताबिक महकमा स्कूल खोलने की इजाजत दे सकता है तो चेक एंड बैलेंस भी रख सकता है। प्राइवेट स्कूल्स हजारों लाखों फीस लेते हैं। किसी गरीब का बच्चा तो प्राइवेट स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकता। कायमा कमेटी के रुकन ने मुतालिबा किया कि कवायद ना मानने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए। और अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का जलसा फैसल मीर खिताब कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला भुट्टो शहीद के नाम पर और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पर निज़ामती अवार्ड्स देंगे। एक लिस्ट बनाएंगे जो कि हमारी हॉल ऑफ फेम होगी कि जिन्होंने एक मर्तबा फिर वो जियाले जिन्होंने जनरल ज़ियाउल हक की पार्टी के लोगों के सामने एक मर्तबा फिर सीना सफर हुए और भुट्टो शहीद की पार्टी के वो जियाले जिन्होंने ज़ियाउल हक की पार्टी को बताया कि अब तुम्हारा वक्त खत्म होने को है। पीपल्स पार्टी वापस लाहौर में अपने कदम जमा चुकी है और साथ साथ में आपको थोड़ा सा ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी कि हम लोग बलदियाती इलेक्शन में जा रहे हैं। मैं मरियम नवाज साहबा से कहूंगा कि आप जनरल ज़ियाउल हक वाला गैर जमाती इलेक्शन ना करवाएं, आप भुट्टो शहीद वाला जमाती इलेक्शन करवाएं, आप कोई भी इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको 433 यूनियन काउंसिल्स में हर वार्ड में इलेक्शन में आपके खिलाफ खड़ी होगी। हम 6000 पॉइंट उम्मीदवार देंगे और इंशाअल्लाह ताला हर टाउन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नुमाइंदा वहां पे जितवाएगी। मैं अपनी पार्टी के आदर जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मशकूर हूँ, आसफ अली ज़रदारी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे लाहौर का सदर बनाया और मुझे काम करने का मौका दिया। मैं हसन मुर्तज़ा साहब का, समीना गुरकी साहबा का, मैं जनाब गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने हर मौके पर हमारा साथ दिया। और सबसे बढ़कर जो हमारे सदर हैं पंजाब के राजा परवेज अशरफ साहब, जिनकी वजह से आज ये सारा इतना बड़ा मजमा खड़ा हुआ है, वो राजा परवेज अशरफ साहब अगर हमारे पीछे ना खड़े हों तो हम ये सारा कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी टीम के तमाम दोस्त बच्चे, हमारा टीम जो है डॉक्टर आयशा शौकत, जनाब मजीद गौरी साहब, आगा तकी साहब, मागुल साहब और तमाम जिनका मैं नाम नहीं ले सका, डॉक्टर फरीद जफर साहब और जैन गुलजार साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। हमारा यहाँ पर आज जो जमा होने का बड़ा मकसद है वो मैं आखिर में बयान करना चाहूँगा। वो ये है कि ये पीछे लिखा हुआ है हर वर्कर खानदान के लिए सोशल सिक्योरिटी कार्ड और हर पढ़े लिखे नौजवान के लिए रोजगार कार्ड। ये हमने एक थिंक टैंक स्टैब्लिश किया है लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जिसमें के सेनेटर अम्मार खान साहब के जो दोनों बच्चे हैं शेहाम खान साहब और अनुशे
खान साहबा, ये दोनों उस थिंक टैंक के को-चेयर हैं और इन्होंने इसके ऊपर पॉलिसी पेपर भी बनाया है और इंशाल्लाह ताला वो पॉलिसी पेपर हम लोग जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पेश करेंगे। इस जो हर मजदूर खानदान को सोशल सिक्योरिटी कार्ड का बुनियादी मकसद ये है कि जिस तरह तमाम अस्पतालों में सरकारी मुलाजमीन को और तमाम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को मुफ्त इलाज और मुफ्त तालीम मिलती है, लेकिन वो पैसे को नहीं पे करते हुकूमत को, तो हम ये ऑफर करने जा रहे हैं। हमारा जो प्लान है वो ये है कि आप हर रेडी वाले से, हर मजदूर से, हर टांगे हर रिक्शे वाले से, हर वर्कर से 500 रुपया या 1000 रुपया महीने का लें और उनको सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क में शामिल करें ताकि वो भी उसी तरह तमाम फैसिलिटीज हासिल कर सकें जो कि दूसरे हमारा तबका हासिल कर रहा है। उससे होगा ये कि 40-50 अरब रुपया आपके अकाउंट में इकट्ठा होगा और तमाम जो हमारा गरीब तबका है उसका इलाज, उसके बच्चों की तालीम वो हो सकेगी। दूसरा जो हमारा हर नौजवान को रोजगार कार्ड का जो हमारा नारा है वो उसका मतलब ये मकसद ये है कि हम लोग वो तमाम नौजवान जो डिग्री याफ्ता हैं, वो तमाम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनको हुकूमत जो है वो एक पूल में रजिस्टर करे सोशल वर्क काउंसिल के साथ और उनकी तालीम और उनकी नौकरियों के लिए वो काम करे। और जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाती सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में या उसको बाहर नहीं भेज दिया जाता, उसको हुकूमत एक स्टाइपेंड दे जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दिया जाता है। और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा प्रोग्राम बन चुका है, इसी तरह ये भी एक बड़ा प्रोग्राम बनेगा। तो आखिर में मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाइए, नाराए 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 भुट्टो। कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी, अब इस नारा बना चाहिए, वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम। अब मैं गुजारिश करूंगा मोहतरमा समीना खालिद तुर्की साहबा से, जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की चेयर प्रेसिडेंट भी हैं और मेरी साबका सदर भी हैं लाहौर की, कि वो अपने ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं चल रहा ये माइक, पीपल्स पार्टी का जलसा समीना खालिद तुर्की खिताब कर रही हैं। तमाम मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, मेरे सामने बैठे हुए तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, उनसे प्यार करने वाले सबको अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी मौजूदगी ये बता रही है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि आज जिनकी सालगिरह का दिन है जो कि 12 बजे स्टार्ट होनी है, और आपका ये प्यार, ये खलूस बता रहा है कि आप जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के लिए यहाँ बैठे हैं, जिनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, क्योंकि उनकी न सिर्फ अपने बच्चों के लिए, उनकी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, क्योंकि उनकी जो जद्दोजहद है वो इतनी ज्यादा है कि उन्होंने बहुत सारे अपनी जिंदगी के साल बड़े कठिन गुजारे हैं, और आज मैं समझती हूँ कि उसका समर है कि वो हम सब में मौजूद हैं, और उनके विजन को, उनकी सोच को, कि अगर हम सीबेक की बात करते हैं तो लोग कहते थे कि आज उसको सभी अडॉप्ट करते हैं, सभी मानते हैं कि ये काम हमने किया है, लेकिन आसिफ जरदारी साहब की जो सोच, जो बसीरत है, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अवाम, उसकी बेहतरी के लिए काम किया।
मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा के साथ उनका जो गुजरा हुआ टाइम था, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो संभाला दिया है, वो एक ऐसी मजबूत, मैं समझती हूँ कि पार्टी के लिए दीवार है, जो कि न सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मैं अब सबके साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में जारी मेड इन फैसलाबाद एक्सपो 2026 के दूसरे रोज़ वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने एक्सपो का इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनअत हारून अख्तर खान ने भी एक्सपो का दौरा किया। शुरका ने फैसलाबाद की सनअती सलाहियतों को सराहते हुए बरामदात में इजाफे को मुल्की मईशत की मजबूती के लिए नागुज़ीर करार दिया। एक्सपो सेंटर में जारी 3 रोजा मेड इन फैसलाबाद एक्सपो 2026 में सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ शेख, सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख, नायब सदर इंजीनियर आसिम मुनीर ने शिरकत की। कन्वीनियर एक्सपो जाहिद महमूद भट्ट, को कन्वीनियर वहीद खालिक रामे समेत सनतकारों और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। विफाकी वजीर राना तनवीर और हारून अख्तर ने एक्सपो में कायम मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, मुकामी सनतों की तैयार करदा मसनूआत का जायजा लिया। विफाकी वजीर राना तनवीर का कहना था कि फैसलाबाद हमारा बिजनेस हब है, बरामदात में इजाफा ही पाकिस्तान की मौशी तरक्की की जमानत है। एक्सपोर्ट किसी भी मुल्क को इकोनॉमिकली स्टेबल करने में, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने में बहुत अहम उसका रोल है, क्योंकि जब तक हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, हम जो सस्टेनेबल हमारा एक मॉडल है इकोनॉमी का, उसकी तरफ हम नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनत और पैदावार हारून अख्तर खान का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और फैसलाबाद चैम्बर मुल्की सनत और बरामदात के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इन काविशों से पाकिस्तान इस मकाम पे पहुंच गया है कि हम अब इकोनॉमिकली दुनिया को स्ट्रॉन्ग करके दिखाएं, और उसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है, और उसके अंदर सबसे बड़ा शहर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का है फैसलाबाद है। फैसलाबाद चैम्बर के सदर फारूक यूसुफ शेख का कहना था कि सनतकारों और ताजरों को सहूलियात फराहम करके ही मुल्की मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। वी आर रेडी सर, फैसलाबाद चैम्बर रेडी है, तैयार है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर कंसेंसस से पॉलिसी बनाएं, चाहे वो बजट प्रपोजल हो। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा बजट दिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारी रह गई जिससे हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना था। तो मैंने हमेशा एक नॉमिनी कमेटी में भी बात की, फिनांस मिनिस्टर फैसलाबाद आए हुए थे चैम्बर, उनसे सारी चीज़ें हमने ब्रीफ की। तो आखिर में सर ये मैं बताना चाहता हूँ कि तीसरा बड़ा शहर, सेकंड रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, इस पे आपकी बहुत शफकत वाली नजर चाहिए। शुरका का कहना था कि मेड इन फैसलाबाद एक्सपो 2026 न सिर्फ मुकामी सनतों को आलमी सतह पर मुतारिफ करवाने का मौसर प्लेटफॉर्म साबित होगी, बल्कि इससे नई सरमायाकारी, बरामदात में इजाफा और मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में मेड इन फैसलाबाद एक्सपो 2026 कंट्री प्लस फूड्स, सहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, सिंपली द ग्रेट फूड, मीडिया टच और नेक्स्ट कंसल्टेंट के स्टॉल्स खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। एक्सपो सेंटर में मेड इन फैसलाबाद एक्सपो 2026 में मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाली कंपनियों के स्टॉल्स शुरका की खसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। कंट्री प्लस फूड्स के डायरेक्टर सेल्स काशिफुर रहमान ने बताया कि उनकी कंपनी मियारी और सेहत बख्श फूड मसनूआत सार्फिन तक पहुँचाने के लिए जदीद मियार को अपनाए हुए है। कंट्री प्लस फूड्स का जो मैसेज है आपके लिए कि सब कुछ आपके लिए और खालिस है, और आपकी जो किचन है इसमें साल्ट से लेके आपको एंड शुगर तक, मीठे तक आपको हर चीज प्रोवाइड करता है। सहर बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल के स्टॉल पर भी शुरका की बड़ी तादाद मौजूद रही। कंपनी की मुख्तलिफ मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। लाइव फूड टेस्टिंग भी यहाँ पे ऑन है, कॉर्न ऑयल चल रहा है, सहर ऑयल चल रहा है, सहर घी चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और इसके टेस्ट को बहुत लाइक किया है। सिंपली द ग्रेट फूड के सीईओ दानियाल अली इकबाल का कहना था कि पाकिस्तानी फूड इंडस्ट्री में जिद्दत और म्यार ही कामयाबी की जमानत है। हमारी जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ प्योर हनी है,
प्लस देसी घी है, सैफरन है और एसेंशियल ऑयल्स हैं। हम इधर फैसलाबाद एक्सपो पे आए हुए हैं फॉर द बिज़नेस, फॉर द एक्सपोर्ट, और ये जो एक्सपो है इट्स वेरी हेल्पफुल। यहाँ पे हमें बहुत से बायर्स आ रहे हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज आ रही हैं जहाँ पे हमारा कॉर्पोरेट काम है। मीडिया टच के सीईओ ख्वाजा नवीद ने कहा कि जदीद मीडिया और मार्केटिंग सॉल्यूशंस कारोबारी तरक्की के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। जो हमारी मीडिया टच है ये भी हमने पूरे फैसलाबाद में डिजिटल मीडिया और स्टैटिक बिलबोर्ड लगाए। हम चाह रहे हैं कि लाहौर में आकर हम लोगों को बताएं कि फैसलाबाद में हम इस काम में लीड कर रहे हैं और सारे जो भी प्रोडक्ट हैं वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ उनकी आइडेंटिटी यहाँ पर भी आए। नेक्स्ट कंसल्टेंट्स के डायरेक्टर ख्वाजा शहरोज ने कहा कि बिजनेस कंसल्टेंसी, सरमायाकारी और सनती रहनुमाई के जरिए मुकामी सनतों को आलमी मार्केट में मुतारिफ करवाने के लिए भरपूर इकदामात किए जा रहे हैं। हम स्टडी अब्रॉड का बिजनेस कर रहे हैं, हमारी 6+ ब्रांचेज हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, और इट्स एन आइडिया ऑफ बेसिंग 200+ यूनिवर्सिटीज अंडर वन प्लेटफॉर्म। मेड इन फैसलाबाद एक्सपो 2026 में शरीक सनतकारों का कहना था कि इस तरह की नुमाइश न सिर्फ मुकामी सनतों की हौसला अफजाई करती हैं बल्कि मुल्की मईशत, बरामदात और सरमायाकारी के फरोग में भी अहम किरदार अदा करती हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ हसन अली, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।